Hi friends, welcome to my channel. Another new day is Thursday, and as you can check out, I had done a second application of henna. Now that brand is called Janu. Okay, earlier it was called Superior. I never tried this Supreme brand, and this time I had bought this long time back. I don't know, maybe October, November. I don't remember when I had got this brand, and it was there in my drawer. I said, since that gave me a very light color, I said, let me cover it up with this. I didn't even have to soak it. I just made a paste, a thick paste of it was 100 grams. I made a thick paste and applied it, and I kept it on my hair. See, I'm getting this reddish, orangish, reddish color, reddish, burgundish, reddish color. And I had to do a lot of application on my hair, a lot of oil, lot of lotion, lot of conditioner, because the hair became very dry after using this brand. So I said this is the first and the last time I'm buying this brand. एक तो इसका कलर एकदम डार्क है, so now I'll have to use another color. Maybe I'll just use a black mehndi or something, maybe. And then give away this color. I don't mind it being behind or inside my hair, but in the front maybe I might just. I used a nail polish today. And just check out my look of the day. My new pajamas which I had got. Check out my pajamas. And this is my new stuff. And I teamed up with these bangles. So can you check out my look? I think it's looking not that bad. I just styled myself. I said something different. So you won't believe, even if I ever had shampooed my hair. See, I had to wash my hair with the soap, Shikakai soap twice, and then I used a shampoo, 2 bar, and yet that color was not going out from my hair. That means it is such a deep, dark orange color. I had no clue. Cost around $40 for 100 grams. You will get it in all the chemist and all that kind of things. What I thought, since I had already done an application, एक वो कलर था जो लगा ही नहीं, उसको तो मैंने सोक करके भी रखा था ओवरनाइट. On top of that color, I use this color. How is my look? I'm doing grass walking. Drained me of all the energy. So what I did was, I had my nimbu pani. Got up very early at 4:30. Then at around 7:30, I had my khakra. I had 4 pieces of khakra. मतलब 2 पहले लिया, फिर बाद में 2. धीरे धीरे करके बैठ के खाया मैंने, बिकॉज आई वाज, मैं ऐसे ही चल के आती ना, नीचे ही गिर जाती. The scalp then too becomes very dry when you do henna application, so it is very important that you need to spa. I did a hair spa immediately. I said, Shanti, I cannot wait for the next day because my hair will be like a copper wire. So I did my hair spa immediately. Like, how do I say? Before using the soap, I liberally massaged my head with the lotion. Then I used coconut oil. Okay, because if you use just the shikakai soap on your hair, my god, it will become very rough and unmanageable. So whenever you're using, you should use shikakai soap only when you oil your hair, otherwise not. So उसके बाद liberal application and massage. It was like a hair spa. And then after I did that,
देन आई यूज्ड द सोप, और इतना कलर बाहर निकल रहा था, मैंने बोला क्या मैंने होली खेली है क्या? दिस इज वन ब्रांड जिसमें इतना कलर, जहाँ पे मैंने आई डिडंट इवन सोक इट, आई डिडंट सोक इट वन बिट, जैसे मैंने पेस्ट बनाया लगा दिया, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी हैड हिना ऑन माई हेड. I don't know how this will look. Maybe it doesn't. I don't know. Y'all please comment and tell me how does this color look. So what will I do is that again I will be oiling my hair and keeping it for 24 hours or 48 hours. I may do that. I don't know, some military खड़ी रहती है यहाँ पे बॉर्डर के लोग ना. मिलिट्री रोड, सो मिलिट्री, इट्स कॉल्ड द मिलिट्री रोड, क्योंकि यहाँ पे आगे देयर इज अ मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप. इट्स अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया आफ्टर भारत वन. सी आई शो यू ऑल. सी दिस मिलिट्री पर्सन. ये गेट है, उसके बाहर एक बाकड़ा है, ये है. एंड इफ यू कैन सी, I can see. See, as you come this side, I'll show you. I'll see. They always stand here near the gate. They do that. I don't know what for. I don't know. चेकिंग के लिए खड़े रहते हैं, बिकॉज रैंडमली अगर अब ये ट्रक है ना, वो ट्रक की चेकिंग कर रहे हैं. Random checks are happening. I don't know, maybe this is a sensitive area, I have no idea, but they are there every morning. 2 of them are there. Be gentle with your hair. If anything which has saved me from this rigorous washes is my hair oiling. Imagine if I were to use all the kinds of shampoos on a dry hair. No. This is my new stuffer which I got last Wednesday. This thing I never wore, only once maybe. ट्रैफिक पुलिस इज ऑल्सो देसी, वो भी खड़ा. ट्रैफिक पुलिस एंड मिलिट्री सिक्योरिटी फोर्स. यू कैन सी रैंडम चेक्स दे आर डूइंग. over here because this is a Powai Chandivli connecting road ना, तो ऐसे इसलिए. I think I've become more stylish now, more and more. In fact, I was always stylish, always, but it was very subtle, like subtle stylish, understated, quiet kind. But now I'm really, really like accessorizing and doing things. कैसा लगता है, अच्छा लगता है. You can say I'm really fasting. कुछ भी खाने पीने का मन ही नहीं कर रहा. Now it's getting a bit sleepy, so I think I'll go and sit down.
मेरा माई रेगुलर्स, हेलो टू देम। कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है। माई व्यूज़ हैव फॉलन डाउन बाय हार्मनी, यू नो। 5,000 व्यूज़ माइनस। Yeah, it's downslided. For whatever good reasons, I don't know. I hope you are liking some variety in my content. I'm not just doing variety, मतलब थोड़ा variety रखी है. It's not always just sitting a thali and eating. It is grass walking, barefoot walking, small garden. I didn't even go to pond park because they are shouting and screaming over there. So I said, let me mentally be a little fit and fine to handle all that chaos and noise and ruckus. Vitamin D is really good for skin and bones. Very important. She's standing there. ये लगता है मिलिट्री का बंदा है, एकदम फिट फाट लगता है. अच्छा दिखता है, मतलब बॉडी वाइज कड़क, लाइक बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग, रनिंग, ऑल फिजिकल एक्सरसाइज. टॉल भी है. इंडियन मैन कहाँ इतने ज़्यादा टॉल रहते हैं, वो शॉर्ट ही रहते हैं एवरेज, और देखने में भी पेंडू जैसे ही दिखते हैं. और साउथ इंडियन तो और भी ज़्यादा अगली लगते हैं. हैंडफुल ऑफ देम लुक रियली गुड. ये मैंगलोरियन बॉयज़ में ना एकदम वाइट होते हैं ना, तो उनकी डिमांड ज़्यादा रहती है. जो सफ़ेदी की चमकार दिखते हैं, सफ़ेद पेंडू कहीं के मम्माज बॉय. I'll show you how they do the rickshaw fellow go. रिक्शा को रोका था, फिर ट्रक को. सीधे स्टैंड हियर एंड दे टॉक. अभी रिसेंटली से हुआ है. आई थिंक आई सी देम, इतना ध्यान नहीं दिया, बट आई सीन देम सिंस पास्ट 1 month. धीरे धीरे मतलब हल्के हाथ से दे टू स्टैंड, बट नाउ डेज दे आर स्टैंडिंग एवरी सिंगल डे. व्हाट इज कॉल्ड सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स, वही है शायद से उन लोग. समटाइम 2 people stand here because this is the main hub, right? I'll show you the ढाबा दिखाई दे रहा है ना, ढाबा. ये जो होर्डिंग दिखाई दे रहा है, उसके पीछे वो ढाबा है ना, पंजाब में पाजी का ढाबा. इट इज़ कवरिंग अप नाउ, बट ये पूरा लैंड उनका ही है, उनके रिश्तेदारों का है, ये उनके मामा जी का लैंड है ये. And it's quite behind also there's quite a big space. वो ट्रक बिजनेस था ना उनका, ट्रांसपोर्ट बिजनेस, तो ऑल दिस ट्रक्स यूज्ड टू बी पार्क्ड ओवर हियर. Then there is an industrial estate. See, this is a new construction, Royal Park. पहले वहाँ पे एक गार्डन हुआ करता था ना. आई शुड लव दैट गार्डन. मैं 2002 की बात कर रही हूँ. 2004 I came back. हाँ, I was here in India for 2 years. Yeah, 2004. So there used to be this beautiful garden in between. Crane ना, if you can see the crane, zoom करके देखो, एक crane है वहाँ पे, एक construction बन रहा है. Huge colonies which have come over there because they scrapped the hill था उसके पीछे. It was a hill touching the hill. So उन्होंने वो excavate किया hill को और बड़े buildings बनाए. Royal Park. I don't know why people like to live in these ugly looking buildings. एक वो ताजमहल है 500-600 साल से दृढ़, और हमारे 30 साल हुए ने और लुढ़क रहे हैं.
भरी जवानी में ही हमारी बिल्डिंग लुढ़क रहे, दे आर अनफिट टू स्टे। इतना रद्दड़ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं और बड़े बन रहे हैं स्वादेशी, स्वावलंबी, स्वदेशी, राष्ट्रीय। मैंने बोला राष्ट्रीय प्रोडक्ट ऐसा रहता है। और वो वीटी का वो देखो, विक्टोरिया टर्मिनस अभी भी मजबूत है। I'll see if I can sit down and relax. Today I got my steel का glass. सुबह सुबह ना ये बहुत ठंडा रहता है, सो अराउंड 9 o'clock ना ये सूख जाता है। सो इसके ऊपर चलने में ना इट्स डिफरेंट, इट्स सूखा, अदरवाइज इट्स वेट। आइदर बिकॉज पानी डालते हैं अर्ली मॉर्निंग, स्प्रिंकलर्स होते हैं, या बिकॉज ऑफ द डस्ट ड्यू सेटल डाउन। See that bird? And that bird has become my good friend. I don't know whether it is the same bird since all the birds look same. Hi there. ये वाला चल रही थी। I bought steel का glass. कोई नहीं है। This is little wet. This plot. ये wet है। Look at the flowers. They look so good. See. वो इस तरह खिलते हैं. It's a bunch. It's a bunch. Wow. For once. Oh. Chair is empty. यहाँ पर reservation होती है. People want to sit. Yesterday these boys were playing cricket. I took the ball. मैंने दिया नहीं. I said I'll wrap your face, run for your life. I said मैं पुलिस के पास जा रही हूँ. तुम्हारा बॉल यहाँ पे आया तो. How does my hair color look like? Should I retain this hair color? Should I color on this? हिम्मत नहीं हो रही है, पिछले 2 दिन से कलरिंग ही कर रही हूँ मैं। एक का तो कलर चढ़ा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इतू सा भी नहीं चढ़ा, जबकि वो प्योर मेहंदी थी। इट वॉज प्योर, वेरी वेरी प्योर। बेचारे मेरे बाल और स्कैल्प, दे हैव टू बेयर द ब्रंट ऑफ द ओनर्स स्टूपिडिटी। Does it look good? I don't know. Please comment on my new hair color. Does it look good? Take my nail polish. हाँ, थक गई मैं ये बाल धोते धोते। सीरियसली आई डोंट नो, आई माइट जस्ट यूज अ ब्लैक मेहंदी। Absolutely gorgeous. या तो मेरे सर में इतनी गर्मी थी एंड मैंने कवर करके रखा, तो वो इसके वजह से भी हो सकता है। Please let me know what I should be doing. Please let me know.
I like my pajamas. It's Marigold from Pantaloon. I've already no discount, so I purchased it. अच्छा वो कुछ खा के आ गई, वरना तो मेरा यही हाल होता। स्टाइलिश, भगवान शक्ति दे, सीरियसली। मैंने सब्सटेंस अब्यूज़ की बात की। नाउ पीपल विल से व्हाई डोंट आई नेम माई कंटेंट। इफ़ आई नेम माई कंटेंट, फिर जो मुझे बकवास सुनने को मिलेगी, मतलब वैसे भी दे आर मॉनिटरिंग माई कंटेंट द मिनट अभी मैंने इतनी सारी बातें, कंट्रोवर्शियल बातें की हैं, इसलिए व्यूज़ आर माइनसिंग। आई डोंट केयर अ डैम, बट जो फैक्ट है सो फैक्ट है। तो अपने स्वादी, स्वदेशी, स्वावलंबी, राष्ट्रीय ये सब ढोंगीपना ना बाजू में रख के वी शुड बी प्रैक्टिकल। व्हेन पीपल डिमोनाइज नो टू प्लास्टिक, यस इवन आई एम वेरी मच नो टू प्लास्टिक। लेट्स स्टॉप डिमोनाइजिंग प्लास्टिक एंड वी शुड बी वेरी सटल विद इट। अभी क्या कर सकते हैं, रैपर्स घर में पैक्ड फूड आता है उसका क्या करें? नो टू प्लास्टिक का मतलब क्या है? आगे से चीज़ें, बिकॉज प्लास्टिक इज़ ड्यूरेबल। जो भी नो टू प्लास्टिक बोलते, मैंने बोला तुम लोग के घर में जो बाल्टियाँ रहती है पानी भरने की, वो प्लास्टिक की है ना? आधे से ज़्यादा सामान तुम्हारे घर में जो बना हुआ है, टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव, जो भी है, टिफ़िन बॉक्स, चलो वो तो तुम लोग ने ग्लास का बनाया, दे आर मेड ऑफ प्लास्टिक। तुम्हारी वायरिंग प्लास्टिक, इंटीरियर में कहीं ना कहीं प्लास्टिक। तो स्टॉप बीइंग दिस मॉन्स्टर। नो टू प्लास्टिक मीन्स रिड्यूसिंग द वेस्ट, रीयूजिंग, रिफ्यूजिंग, रिसाइकलिंग, वो सब नहीं करेंगे। ये मेरा होम स्पा है, देखो देखो मेरे बाल, मैंने तुरंत स्पा किया। अगर मैंने स्पा नहीं किया होता तो मेरे बाल ऐसे ये रफ होते। अभी ये देखो, सो नाइस। हिना का कलर जैसे चढ़ गया ना मेरे सर का, पूरा जो है ना कल हीट। क्या कलर चढ़ रहा है बाप रे, कॉपर की तरह। I keep this color for at least 1 week and see how this. Just experiment with my hair color. Please let me know. अभी आने वाले दिनों में I'm just doing oiling and oiling and oiling.
मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने आई जस्ट सेड लाइव व्लॉगिंग वॉकिंग फ्रॉम मेट्रो स्टेशन टू माई होम ऑन सैटरडे एंड संडे, और मैंने दिखाया कि कोई गर्दी नहीं है. तो इन चाइना सडनली ऑल द पीपल आर व्लॉगिंग, रैंडमली वीडियो निकाल रहे हैं कि वहाँ पे पॉपुलेशन ही नहीं है, बिकॉज द गवर्नमेंट इज़ फॉल्सिफाइंग द डेटा ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. वहाँ पॉपुलेशन है ही नहीं, गांव उनके एम्प्टी है, अबैंडेंड, उनके सिटीज़ एम्प्टी है. दे हैव सच अ बैड रिसेशन, इन्फ्लेशन, कि कोई चीज़ें खरीद ही नहीं रहा है वहाँ पर, गर्दी ही नहीं है वहाँ पर. वो दैट बीजिंग जैसे सिटी में भी देयर वाज नो रश, नॉट इन द मॉल, नॉट ऑन द स्ट्रीट. या मेन शंघाई, दिस शंघाई, गॉन्जोंग, ये तो इम्पॉर्टेंट उनके सेंटर्स है, हब्स है, फाइनेंशियल सेंटर्स. तो द गवर्नमेंट इज सेइंग समथिंग, उनको पागलों की तरह मानो मत कि कुछ भी ब्लाइंडली उसको बिलीव करना. मैंने पहले भी कहा था देयर इज़ नो पॉपुलेशन. मैंने मेरी बिल्डिंग की एग्जांपल दी, 70 to 80%, 80% रेंटल्स, 20% ओनर्स, और उस ओनर्स में भी सीनियर सिटीजन्स एंड इक्के दुक्के फैमिलीज होंगे, हैंडफुल ऑफ देम. थिंक अबाउट इट. तो बॉम्बे में बॉम्बे का एक क्राउड नहीं है, क्योंकि इनके सारे बच्चे माइग्रेटेड है या फॉरेन कंट्री में है. अगर गवर्नमेंट बोलती है ना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन कहाँ से? एम्प्टी, एक टाइम पे ये अंधेरी खचाखच लोगों से भरा रहता था. रात को एम्प्टी. अमेरिका में आधे से ज़्यादा states are empty because of geographical conditions or whatever. empty मतलब एकदम खाली इतना स्पेस है. और वहाँ पे होमलेस पॉपुलेशन है. लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में, पूरे वो न्यूयॉर्क में होमलेस भरे पड़े हैं. वाई? बिकॉज गर्दी है, लोगों के बीच में खाना पीना शेल्टर वैसे भी हो जाता है. अभी नहीं, होमलेस लोगों को तुम रीसेटल कर दो इन लैंड्स में, क्या वे रह पाएंगे? वो न्यूजीलैंड 80% इज नॉट इवन 80-90% ऑफ इज फुल ऑफ काउज एंड शीप्स. ग्रेजिंग भी नहीं, उनका माउंटेनियस रीजन रहता है. तो पीपल आर ओनली इन द सिटीज़. सबसे ज़्यादा खाना वहाँ पर बनता है, खाने वाले लोग 4, और खाना बनता है 400 लोगों का. अभी फ़िलहाल आबादी हो गई है. आई रिमेंबर व्हेन आई हैड अप्लाइड फॉर न्यूजीलैंड, टू मेनी रिस्ट्रिक्शंस, बट नाउ दे आर अलाउिंग 2,45,000 पीपल पर ईयर. वो टाइम पे दे वर एक्टिंग स्मार्ट, दे डिडंट वांटेड फॉरेन इमिग्रेशन. मैंने बोला भरेंगे तो भरेंगे, इंडियंस भरेंगे, पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, चाइनीज़ एंड फिलिपिनो, ये 4 जाति तुम्हें कहीं पर भी मिल जाएंगे. तो वो जैसे दिल से दिस इमिग्रेशन ओपन, ये 4 घुस जाएंगे वहाँ पर. नेपाली भी आजकल यहाँ वहाँ अपने पंख पसारने लगे हैं. बट नंबर 1 इंडियन, उसके बाद पाकिस्तानी, उसके बाद श्रीलंकन, नेपाली. वैंकूवर में देयर आर लॉट ऑफ श्रीलंकन, Chinese, Sri Lankan, Indians so definitely are there only. Do let me know about my hair color. मजबूरी से मैंने तो भी वादा तो निभाया, ओ मेरे राजा. समझ गई मैं तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना, मजबूरी में वादा तो निभाया,
ओ ओ मेरे राजा। मैं बहुत खुश भी हूँ, ऐसे यूं ही। नजर नजर में हर दिल का पता चलता है, अब हम पे है फिदा साफ पता चलता है। आ जाओ, गोद में बैठ जाओ मेरे। ये बच्चे आ गए हैं, अब सर पे बैठेंगे मेरे। Don't tell me I won't sit here. Better not. People are quite cooperative. हाँ, प्यार से आराम से बात करो ना, और तुम थोड़े स्टाइलिश दिखते हो, तो कैसे अच्छा खासा कोऑपरेशन मिल जाता है फ्रॉम वुमेन एंड मैन। वुमेन ऑल्सो भैंचोद अंदर से थोड़े जलती कुर्ती रहती है, लेकिन स्टाइलिश पर्सन देख के थोड़ा फिर वी बिकम लिटिल लीनियंट। ऐसा लगता है, अच्छा लगता है। बागी का है, नगमा एंड सलमान खान, 1990 की मूवी है शायद, 90। प्यार का सपना सच्चा लगता है, तू जो करीब है मेरा नसीब है, ना 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 ना। सलमान वॉज अ बिग स्टार बैक देन, एंड आमिर खान का वो जब कयामत से कयामत, आई वाज इन स्कूल, माय गॉड, पीपल यूज्ड टू गो क्रेजी आफ्टर आमिर खान। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, दिल की दुनिया में अपना नाम करेगा। मगर मतलब तुम्हारा यही काम, ग्रेजुएशन होने के बाद मुंह मारते फिरो, छिचोरे बनो, और कोई काम धंधा नहीं है। गृहस्थी बसाने चलो, काम धंधा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। लड़की पटाओ, घर बसाओ, बच्चा पैदा करो, सेक्स करो, बस। ये हमारी हिंदी फिल्म का, you know, when you are in love with somebody, कितने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, ये पल पल रहा न जाए, तेरी दो टकिया दी नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए। मिलो न तुम तो दिल घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। इमेजिन, ब्रेकअप के बाद भी मैंने करवा चौथ मतलब सबकॉन्शियसली मनाया था। ये विमेन आर लिटिल नटकेसेस, सती सावित्री। क्या डेडिकेशन है, वाह 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 वाह, मतलब सबकॉन्शियसली। बॉलीवुड ने पूरा तहस नहस करके रख दिया है। दिस के ड्रामा इज ऑल्सो डूइंग द सेम शिटी बिजनेस ऑफ पुटिंग रॉन्ग नोशन इन पीपल्स हेड। रिलेशनशिप इज इट्स लाइक अ गवर्नमेंट जॉब, बोरिंग बट स्टेबल। आई मीन इफ़ यू आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, वही 9 to 5 वाला जॉब, उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं रहता है। वो कभी इतना ज़्यादा बोरिंग रहता है ना कि तुम्हें रिलेशनशिप है बट वो फिल्मों वाली एक्साइटमेंट नहीं होती है उसके अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड, मुझसे पूछो। सीरियसली, अगर तुम्हारे पास ऐसे मौन व्रत गूंगा गुड्डा जो होता है, जो बात भी एकदम थम थम के करता है, तो फिर बात ही कुछ अलग है।
नहीं, he was quite talkative. सर ने गुड मॉर्निंग मैसेज दिया. मेरा बैक एक ठीक होने के लिए मुझे 2 दिन लगे. कल भी मैंने बहुत सारा आराम किया. मैं बाहर पागलों की तरह घूमने नहीं गई. मैंने कुछ नहीं किया. आई वाज जस्ट रेस्टिंग. और मुझे क्या हुआ ना, मुझे रात को 8 o'clock, then I got up at 9:30 or 10:30 and I said oi 10:30, then again I went to sleep. एक आध वीडियोस देखे, डॉक्यूमेंट्री देखे अबाउट द चाइना थिंग. चाइना का मैंने देखा. आई यूज्ड टू वॉच दिस जापनीज़ कोरियन तो मैं देखती ही रहती थी. चाइना का भी मैं देखती रहती थी. बट चाइना का बहुत सारा प्रोपेगेंडा रहता है. बहुत सारा प्रोपेगेंडा रहता है उनका. चाइना का उनका गवर्नमेंट फंडेड हांगकांग बेस्ड एक है न्यूज़ चैनल जो अपने वो लल्लू चप करती रहती है. टोटली गवर्नमेंट फंडेड. तो वो फॉरेन मीडिया में उनके सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें बताता है. अमेरिका इज़ एम्प्टी एम्प्टी एम्प्टी. यू नो दे गिव फ्री लैंड इन अमेरिका. फ्री लैंड मतलब एकदम चीप रेट पे देते हैं उन लोग. बट वहाँ पे जाके बसेगा कौन? टोर्नेडोज होते हैं, हरिकेन्स होते हैं, मिडल ऑफ नोवेयर. हम तो आबादी के देश में से आए. इमेजिन एक पर्सन को देखने के लिए भी तरस जाओ. मीलों मीलों सिर्फ फ्लैट लैंड्स या तो पहाड़. एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल बट इट्स लाइक एम्प्टी एंड इट्स नॉट इनहॉस्पिटेबल. जैसे हम इंडियंस को वहाँ पे भारी तादाद में शिप करके भेज दो, हम लोग वहाँ पर भी बस्ती बना लेंगे और पूरे गांव वालों को भी बुला देंगे. आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ. पूरे रिश्तेदारों को भी वहाँ पे बुला के बस्ती बना देंगे. कोरिया इन जापान दे आर गिविंग फ्री हाउसेस कॉल्ड अकाया, अबैंडन्ड हाउसेस. वहाँ पे पूरे पॉपुलेशन ओल्ड है. वहाँ पे देयर इज़ अ 97. आई सी दीज फूडी थिंग्स ना. वहाँ पे ओल्ड लोग खाना बनाते हैं. पहाड़ों में रहते हैं. उनका एक रेस्टोरेंट होता है और पिछले 50, 60, 70 साल से एक ही जैसा लाइफ लीड करते हैं. वही नूडल्स बनाएंगे, वही फ्राइड राइस बनाएंगे, वही फ्राइड चिकन बना देंगे. एंड दे आर हैप्पी इन विद देयर लाइव्स. एंड दे आर 97-year-old, 87-year-old, 92-years-old, 101-year-old. फिर झाड़ू लगाएंगे, बर्तन धोएंगे. सी बिकॉज देयर फूड इंक्लूड्स फ़िश. वो फ़िश खाते हैं, राइस खाते हैं और काम करते हैं. तो व्हेन यू आर डूइंग रोज़मर्रा का काम करेंगे ना तुम लोग. उनके बहुत सारा पॉपुलेशन इज़ अबाउट 70 years old, 60+, 70 years के बहुत सारे लोग हैं. तो दे लुक वेरी फिट एंड फाइन मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि हाथ से कुछ ना कुछ करते रहते हैं. और यहाँ के लोगों को 50-40 साल में बुढ़ापा लग गया है. तो 97-year-old नानी को देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए. शी वॉज एक्चुअली कुकिंग. और वो डिफ़िकल्ट शूबा वाला नूडल्स होते हैं ना, वो बकवीट का होता है, कुत्तू का आटा जिसे बोलते हैं, उसका नूडल्स बनाते हैं उन लोग. तो एक स्पेशलिटी है वो जापान में. तो वो खाने के लिए कहाँ से लोग आते हैं. मतलब हाईवे पे है, उन माउंटेन पे आ जाते हैं लोग. स्टार्ट्स एट 8, फ्रॉम 8 o'clock to 6 o'clock. 8 o'clock इन द मॉर्निंग टू 6 o'clock. तो वो उन लोग ओपन तो करते हैं रेस्टोरेंट को. 11 o'clock को ओपन करते हैं. बट शी वेक्स अप एट 6 o'clock एंड शी डज दिस प्रेपरेशन. एंड एवरी सिंगल डे इट्स हर ओन. हर रूटीन इज़ द सेम. एक आंटी वो क्या बना रही थी, कुछ तो ओरो फ्रेटर्स डम्पलिंग्स बना रही थी. सिर्फ वो डम्पलिंग्स खाने के लिए, ग्रैंड माँ की डम्पलिंग्स खाने के लिए कहाँ से, मतलब वो इतना फेमस है. मैंने बोला राइस को वो जलाते हैं. मैंने बोला बॉइल्ड वो खिचड़ी जैसा कोई राइस होता है, उसके ऊपर सोया सॉस. उनको अच्छा लगता है वो डम्पलिंग. मैंने बोला नहीं नानी जी, ये तो रहने दीजिए, आप मुझे नूडल खिला दीजिए. Maybe it may be tasting good according to their palate. I have no idea. तो हम लोग जब देखते हैं तो मुझे तो शौक लग गया भाई, ये क्या है खाने को जला बुना के उसका एक लड्डू जैसा बना के, क्या है ये, उसके ऊपर सॉस डाल दिया. बट लोग वैसे हैं. और यहाँ पे तो 40-30 के उम्र में ही लोग बूढ़े लगने लगे हैं. इन जापान एंड कोरिया ऑल्सो पीपल लिव क्वाइट लॉन्गर, दीज ओल्डीज.
एंड जापान का डाइट है ना, बिकॉज दे ईट अ लॉट ऑफ सोया फर्मेंटेड फूड, उनके हिसाब से उनके, बिकॉज वाई डू दे लिव लॉन्गर, बिकॉज दे ईट होमोजेनस फूड जो वहाँ पे बनता है, उगता है, रीजनल फूड्स, सीजनल फूड्स खाते हैं, इसलिए वो हेल्दी है। हमारी तरह नहीं पैक्ड माल मसाला खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, खाते रहे। इसलिए दे कैन फंक्शन, दे कैन वर्क एंड दे हैव अ पर्पस इन लाइफ, कुछ ना कुछ बनाते हैं हाथ से। यहाँ तो लोग आलसी बने पड़े हैं, पैर पसार के बैठ जाती है लेडीज़, वहाँ पे फुग्गे जैसी मोटी जाड़ी पैंडा जैसी दिखने लगती है। ये काम करे, वो काम करे, वो तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा है। फिर ऊपर से यू आर इन कंट्रोल इफ़ यू आर कुकिंग योर ओन मील्स। इट्स अ फैक्ट। पॉपुलेशन, अगर मुझे कोई बोलते ना पॉपुलेशन में, अमेरिका में जाके देखो, उनका आधे से ज़्यादा 70% खाली है, सिर्फ वो न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और बॉस्टन और ये फ्लोरिडा जैसे प्लेसेस में थोड़े लोग दिखेंगे, शायद मियामी जैसे प्लेसेस में, बट उनके इंटीरियर्स तो खाली ही है। सदर्न स्टेट्स में कोई पब्लिक रहेगी, बट वहाँ पे कम्युनिटी ओरिएंटेड है, मतलब वाइट्स का डोमिनेशन है। एंड आई डोंट नो इफ़ वी इंडियंस विल गो, हाउ दे विल एक्सेप्ट अस। एशियंस अगर जाएंगे तो होम ओनर्स, वहाँ पे घर भी सस्ता रहता है, उनको 65,000 उनके लिए कम है। $65,000 पर ईयर इज़ लेस। मैंने बोला बैंडी 64,000 इज़ लेस फॉर ईयर। यहाँ पे लोग 1 लाख से भी कम में अपने पूरे साल की ज़िंदगी काट लेते हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहकर भी। बैंडी, मैंने बोला यू पीपल आर नट्स। मे बी देयर हाउसिंग टैक्सेस, आई हैव नो आइडिया कि कहाँ पैसे जाते हैं इनकी। और वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है और इंटरनेट भी एकदम बेकार सा है। बट कोरिया हैज़ द बेस्ट इंटरनेट सर्विसेज, मतलब तुम कहीं पर भी रहो तो तुम्हें अच्छा इंटरनेट सर्विसेज मिलेंगे। शायद उन लोगों ने काफ़ी सारे टावर बना के रखे हैं या कुछ बना के रखा होगा आपने। और क्या है, उनके वैसे भी पॉपुलेशन ना शादी कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना बच्चे, तो उनको ये इंटरनेट में ही लगे पड़े रहने दो, उलझे रहने दो। डिस्ट्रैक्शन फॉर देम, फॉर दी, so they are forever kids, they'll never grow up in their lives. See now my hair is becoming सूख रहा है ना, तो देखो अभी सीधे ऐसे, सीधी ऐसे। Today it's all matching. I'm feeling very nice. I actually dressed up today. मैं दिल से मैंने कुछ ट्रेंडी पहनने की कोशिश की, कुछ अलग पहनने की कोशिश की। मैंने बोला समर में मुझे आई वॉन्ट टू बी ड्रेसिंग अप अकॉर्डिंग टू समर स्टाइल्स, लाइट कलर्स। सो मेरा ध्यान, सिंस आई यूज्ड टू ऑलवेज लाइक डार्क कलर्स, now I'm liking light colors. I like pink and white. I don't know why suddenly this change has happened to me. I like lighter colors in summer. Pink, teal color, मतलब light, aquamarine color, like light. turquoise, ऐसे वाले colors पहनने हैं मुझे. If I can get a set of whites ना, I'll see if I can get whites. See my look. I look cool ना. I look like one heroine. रज़िया गुंडों में फंस गई जिलेबी बाई। नो, नेक्स्ट टाइम मुझे कोई बोलता है ना यहाँ पे आके भाषण दे दो और डिबेट विद देम, मैंने बोला तुम लोगों से डिबेट करना मतलब तुम लोग फिर पर्सनली अटैक करते हो, फिर तुम लोग मेरे कास्ट पे आ जाओगे, फिर मेरे लुक्स पे आ जाओगे, फिर डिबेट तो गया खड्डे में, बिन में चला गया। मैंने बोला देखो भाई, जब लोग भारत माता की जय बोलते हैं ना, मैंने बोला चोंच अपनी बंद करो, भारत माता के लिए हम क्या कर सकते हैं वो पहले देखो। जब तुम किसी को देखते हो, क्या तुम मुस्कुराते हो? क्या तुम्हारे मुंह से नमस्ते या गुड मॉर्निंग निकलती है? ये नहीं निकलती, मुंह सूजा हुआ रहता है पकौड़े की तरह। भारत माता की जय मैंने बोला। वहाँ पेड़ों को पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे पाइप सिस्टम है, और पाइप को टैप ऑन करके वो सबको पानी मिल जाएगा। क्या तुम सच्ची भक्ति करते हो? वहाँ वो गणेश मंदिर है,
वहाँ भिखारी बैठा रहता है, वो पुजारी का पेट इतना बड़ा हुआ है, वो हाथ में थाली मिठाई का लेकर खड़ा है, लेकिन ही इज़ नॉट गिविंग एनीथिंग टू द पुअर हु सिटिंग आउटसाइड। वो रिक्शा वाले ने खड़े रहकर, जो इतना मेहनत करके कमाता है, वन ओल्ड पर्सन, ही वॉज इन दिस 60s आई रिमेंबर, उन्होंने खड़ा किया वहाँ पर एंड ही सेड मैडम एक मिनट, हाँ मैं ये, देन ही रिमूव 10 रुपीज़ एंड ही गिव इट टू हिम। ही सेड मैं रोज़ ये करता हूँ, बेचारे चाय तो पी लेंगे। ही सेड मेरे पास जितना है मैं मेरे हिसाब से करता हूँ। दैट वॉज द रिक्शा वाला सिंग। और ये जो बहन जो लोग बकेट लेके फिरते हैं ना, मैंने बोला बहन भी तुम लोगों से 5 रुपये भी निकलता है क्या? या उसके लिए एक ब्रेड या रोटी अपने घर से ही लेके आओ ना, यू डोंट हैव टू बाय। तुम्हारे घर में रोटी होती है, और रोटी जितनी बासी उतनी ताकतवर, उतनी अच्छी रहती है बासी रोटी। मुझे बोलते ना बासी, मैंने बोला मैं बिंदास खा लूँ, चपाती खा लूँ, हम लोग तो खाते रहते हैं। फ्रेश मानी कि फ्रेश, दिमाग पे ये औरतें और ये लोग बाबा जी लोग बिठा के रखते हैं नहीं, बासी रोटी में काफ़ी वो ताकत रहती है। अपने घर से सब्ज़ी और रोटी लाके दे दो उस पर्सन को, उसका पेट तो भरेगा। और वो हैंडीकैप थे वो ओल्ड अंकल। कितने लोग पुण्य का काम करते हैं, कितने लोग करते हैं। बड़ा चोच खोल के भारत माता की जय निकलता है। मैंने बोला भारत माता की जय तो ठीक है, बाकी तुम्हारी कर्मों का फेयर लिस्ट लिखेंगे तो कुछ भी नहीं है उसमें, अंडू कुछ भी नहीं करते तुम लोग, बस गाना सुबह सुबह चीखना चिल्लाना। इसलिए आई स्टॉप्ड इट, क्योंकि मुझे स्ट्रेस हो रहा था एंड अ सेकेंड हैंड एम्बैरेसमेंट व्हेन आई एम शूटिंग। आई सेड मेरे कंट्री का क्या पुअर इमेज बनता है ये ट्राइबल्स जैसे, तालिबान जैसे लोगों के वजह से। And that pond park has become ugly. I was seeing the pictures of last year. I used to go last year also. I said it was far more prettier and nicer. But now the auras have changed. खाने की खुशबू यहाँ तक आ रही है। You know what? I'll go and get my sugarcane juice and then I'll do a second session sitting over here. मेरे बस में हो तो मैं क्या बोलूँ, मेरे एक बड़ा सा बंगला हो, बहुत सारे एनिमल्स हो, इतने सारे प्लांट्स हो, लवली गार्डन हो। मैं तो बोलूँगी बच्चों को कहीं और खेलने को ना मिले ना, डोंट बैट एंड बॉल नहीं है ये, बाकी सारा छोटा मोटा उनके लिए प्ले एरिया भी बनाऊँगी गली के बच्चों के लिए। आ जाओ खेलो कि मेरे गार्डन में। सीरियसली आई डू दैट। एक जेनरॉसिटी होनी चाहिए। अगर मैं आई एम नॉट ब्रैगिंग और बोस्टिंग, अगर मुझे कुछ अच्छे दिन भी देखने को मिलते हैं, कर्मों का फल कुछ अच्छा, मैंने आई ऑलवेज टेल गॉड मैंने कुछ अच्छा किया होगा कि मुझे अच्छे दिन देखने को मिल रहे हैं अभी आज की तारीख में। ओके, आई जस्ट गेट माई sugarcane juice. टुडे आई गॉट माई स्टील का ग्लास, सो मैं दिखाती हूँ मेरा अच्छा खासा स्टील का ग्लास लेके आई हूँ। You know what? Sometimes what I'll do is that I'll carry all these things around with me if I'm going out to eat. Seriously. My fork, my spoon. मेरे बस में हो तो मेरी स्टील की थाली भी लेके जाओ, बिकॉज आई कांट हैंडल प्लास्टिक एंड मेलामाइन और पेपर। वो रबिश वैसे खाना मुझे पसंद नहीं आता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी लोग बोलेंगे वाई डिड आई, अगर घर का खाना, मैंने बोला 8 साल से घर का खाना ही खा रही थी। इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस। इट्स नॉट दैट कि मुझे बाहर के खाने की आदत नहीं है, आदत थी मुझे, मैंने बहुत सारा बाहर का खाना है, बट ये वाले ईयर में मैंने कुछ नया किया है। लाइक आई एम गोइंग आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन, पुशिंग माई सेल्फ, बिकॉज आई यूज्ड टू बी क्वाइट एन इंट्रोवर्ट, क्वाइट अ रिजर्व पर्सन। फिर वो कैसे डील करना, ये धीरे धीरे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, पुरानी वाली शांति बाहर। या कोको जम्बो, या कोको जम्बो, पुट मी अप एंड पुट मी डाउन, पुट माई फीट बैक ऑन द ग्राउंड एंड मेक माई हार्ट गो हैप्पी। या कोको जम्बो। कैसे वेले वेले गाने होते थे पहले, एड़े जैसे गाने, कुछ भी मीनिंग भी नहीं बनते। Put me up, put me down, Coco Jumbo by Mr. President. Put my foot back on the ground, put my heart and make me happy. Yeah, Coco. All the 90s, all the oldies, raise your hands and tell कि तुम लोग को ये गाना पता है। Na 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 na
na na na, ah, yeah, na 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 na. चलो मैं रखती हूँ, शुगर केन टाइम हैज़ हैपेंड. ओके, बाय, टेक केयर.